Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6 which name 3rd edition New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of unit number 3 A Polar Explorer. Open your book पेज नंबर 31. फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्रीहेंशन में कई टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि मैं ऑलरेडी ही सॉल्व कर चुकी हूँ, इसके नोट बना चुकी हूँ. जो नेक्स्ट पेज पे वर्किंग विद वर्ड्स है, जो काम बुक में करने का है वो मैं बुक में डन कर चुकी हूँ. और नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. 35 पेज पे है सेंटेंसेस, इसके 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. और पेज नंबर 36 पर इसके लास्ट क्वेश्चंस हैं डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड कंपोजिशन. एक्सरसाइज लास्ट तक सॉल्व है. आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह. आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड एमंसन मदर वांट हिम टू बी? डिड ही फॉलो हर विशेस? आंसर Emerson's mother wanted him to be a doctor. He followed her wishes before she died. Question number 2. What Emerson the inspiration to be an explorer? How did he prepare for this as a child and as an adult? As a child, he read about famous British explorers. He joined as many sports team as he could and slept with his window wide open despite the freezing cold Norwegian winters so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. Next question. What key skills did Emerson learn about survival? Look at the 4th and 6th paragraph. Emerson picked up important arctic survival skills such as using dogs to travel by sledge. These were useful in later expedition to the North Pole. Emerson also stocked up on furs to wear which were much warmer than the woolen cloths he had. Next question है what made it to pass through the Northwest Passage? What helped Emerson achieve it? Answer लिखें इसका. Getting to the North Pole was a challenge. First Emerson tried to go by ship but it got stuck in ice. He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane. The first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful. Finally in 1926 Emerson made it to the North Pole. Next question. When did Emerson get to the North Pole? Emerson got to the North Pole in 1926. F question. What did Emerson companions mistake the Eskimos for? Why? Emerson companion mistook Eskimos for caribous because they were too far away from them. जी क्वेश्चन है हाउ डिड एमंसन टॉक टू द एस्किमोस? आंसर लिखें इसका. बाय नोट्स एंड शेक जेस्चर एंड टोन्स फॉर द वॉइस. These questions are more challenging. Discuss it first. H question है how did Emerson die? In June 1928, age 55, Emerson was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared. Emerson and the rest of the crew were never seen again. I question है Emerson said victory await him who has everything in order. Explain what he mean by it. Emerson meant that those who are well prepared, organized and have all the necessary elements in the place are more likely to achieve victory or success in their endeavors. A question है write a short summary of the given main text. Do not include the content in boxes. Edit your summary so that only the most important detail from the text are included. इसकी summary लिखनी है. क्या summary है इसकी? A polar explorer is someone who explores and studies the icy regions of the Arctic and Antarctic. They face harsh conditions and use specialized skill and equipment to navigate the frozen landscapes. Their expeditions contribute thus to scientific research, expand our understanding of polar regions. 2 question है mark these statements as true or false. Rewrite the ones that are false correctly. A है Scarway is caused by a lack of vitamin C. Scarway एक बीमारी का नाम है, वो क्या विटामिन सी की कमी की वजह से होती है? Yes, it is true. Next है getting to the North Pole was easy. False. Correct answer है इसका getting to the North Pole was not easy. C है Emerson was the first person to be able to claim that he had been to both poles. Yes, it is true. D है it is always dark at South Pole. No, false. Correct answer है March to September. E है the North Pole is not on land. False. Last है no animals live near the North Pole. False. Question number 3. Answer the following questions with reference to context. Some other 2-legged caribous joined the first until 5 figures were outlined
against the sky. What were the two-legged caribous? आंसर लिखिए इसका Eskimos. How many people were on Amundsen sides? Two people were on Amundsen side. Their leader, seeing this specific move, imitated it by turning to his and uttering a command. What is mean by the phrase specific move? आंसर लिखिए इसका peaceful action. How do the Inuit respond? They responded by nods and shake and body language. अगर बुक में समझ नहीं आई है तो यहाँ भी मैं नोट कर चुकी हूँ. फर्स्ट में लिखना है एस्किमोस, सेकंड में टू, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पीसफुल एक्शन और टू वाले पार्ट में लिखना है दे रिस्पॉन्डेड बाय नोड्स and shakes and body language. Look at the two fact files about the poles. Write 4 sentences in which you compare the poles. Look at the example of how we compare things given below. Use in then in your sentences. हमने 4 sentences बनाने हैं. Colder than यानी then का use करके हमने 4 और sentences बनाने हैं. मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूंगी. The North Pole is closer to Europe than the South Pole. Second sentence बनाए. The North Pole is easier to reach than South Pole as there is no landmass at the North Pole and it can be accessed by sea. Third sentence बनाए. The South Pole harsher weather than North Pole, strong winds, low temperature. The South Pole is located on the continent while the North Pole is located in the Arctic Ocean. Next question. बी वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्जों के साथ काम करना. क्वेश्चन नंबर 1 है लुक अगेन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एमंसन बुक, फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स एंड यूज ईच वन इन अ सेंटेंस. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सेंटेंस बनाने हैं. स्टेडफास्टली का जुमला बनाए. द स्टेडफास्टली हेल्ड ऑन टू हिज मदर्स हैंड एज दे क्रॉस्ड द बिजी स्ट्रीट. ऑब्स्टेंटिशियसली ज़ाहिरी तौर पर. सारा's room was ostentatiously decorated with white and silver Pacific. Amundsen showed a Pacific moves to the Eskimos by putting down his weapons. Reciprocate का मतलब है बाहम तबादला करना. My neighbors helped me in making garden and I reciprocated them by making the dinner. Next question है you have learned these proverbs. Can you complete them? The early bird catches the worm. Early bird dash में लिखें catches the worm. Look before dash look before you leap. Learn to walk before you run. Don't count your chickens dash don't count your chickens before they hatch. You may lead a horse to water dash में लिखें but can't make it drink. नोट भी बना चुकी हूँ. फर्स्ट में लिखना है catches the worm, सेकंड में you leap, बिफोर यू रन, फोर्थ में लिखना है बिफोर दे हैच और लास्ट में लिखना है बट कांट मेक इट ड्रिंक. चूज वन ऑफ द प्रोवर्ब्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द क्लास. इन प्रोवर्ब्स में से किसी एक को चूज करके आपने उसके मीनिंग बताने हैं. जैसे कि लुक बिफोर यू लीप, कुछ भी करने से पहले सोचना है. इसी तरह किसी एक प्रोवर्ब की मीनिंग आपने अपने क्लास में डिस्कस करनी है. नेक्स्ट पेज पे है होमोग्राफ. क्वेश्चन है इसका सर्कल द करेक्ट होमोग्राफ्स इन ईच सेंटेंस. एग्जांपल भी दी गई है हमें और नेक्स्ट हमने होमोग्राफ को अंडरलाइन करना है. वुड और वुड दोनों का साउंड एक जैसे है. यू लाइक टू प्ले विद अस. वुड को आपने अंडरलाइन करना है. वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे. इसका ये मतलब है वुड को अंडरलाइन नहीं कर सकते. वुड का मतलब है लकड़ी, जबकि आवाज दोनों की एक ही जैसे है. द मॉर्निंग ड्यू वॉज ब्यूटिफुल ऑन द लीफ. ड्यू का मतलब है शबनम के जो कतरे होते हैं, इसको आपने अंडरलाइन करना है. सी है ही ट्रैप्ड एंड फेल डाउन द स्टेयर्स. दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है लेकिन मीनिंग में फर्क है. स्टेयर्स का मतलब है सीढ़ियाँ और स्टेयर का मतलब है घूरना. तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस के मुताबिक कौन से वर्ड को हमने अंडरलाइन करना है. सीढ़ियों को, स्टेयर्स. नेक्स्ट है माई असाइनमेंट इज ड्यू दिस फ्राइडे. इस ड्यू को आपने अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट है कुड यू प्लीज चॉप सम वुड या वुड फॉर द फायर प्लेस. यहाँ पे वुड यानी लकड़ियाँ, इसको आपने अंडरलाइन करना है. फर्स्ट में क्या अंडरलाइन करना है, वुड, ये वाला वुड, ड्यू, स्टेयर्स, ड्यू, वुड. नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच. बेटा आपने इनको खुद ही रीड करना है, यहीं से समझ लेना है आपने. जब आप ये समझ जाएंगे तो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो अगले पेज पे है आप उसे खुद सॉल्व कर सकेंगे. नेक्स्ट पेज पे आ जाए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच। यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। हमें जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं हमने इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा कंजक्शन है या एडजेक्टिव है या इंटरजेक्शन है। तो तमाम तर वर्ड्स को मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ। येलो क्या है? एडजेक्टिव है। क्रोल्ड वर्ब है। शुएब इज द डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी। शुएब क्या है? नाम है, तो नाम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। लार्ज सिफ्त बयान की गई है कंपनी की, तो ये एडजेक्टिव है। द टेप वॉज लीकिंग येस्टरडे। टेप नाम है, नलके को बोलते हैं, तो ये नाउन इसके ऊपर लिखें। लीकिंग येस्टरडे एडवर्ब है। मी, इस सेंटेंस में मी जो है वो प्रोनाउन है। मॉर्निंग एडवर्ब है। दो वर्ड्स को या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे कंजक्शन बोलते हैं। तो एंड क्या है? कंजक्शन है। फेड क्या है? आर फेड वर्ब है। एवरी वन मॉर्निंग आई सा लिखे वर्ब। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। ओह इंटरजेक्शन है। न्यू कार, न्यू इसमें एडजेक्टिव है। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करती हूँ। येलो एडजेक्टिव है। क्रोड वर्ब है। शुएब नाउन है। लार्ज एडजेक्टिव है। टेप नाउन है। येस्टरडे एडवर्ब है। मी प्रोनाउन है। मॉर्निंग एडवर्ब है। एंड कंजक्शन है। फेड वर्ब है। सा वर्ब है। इन प्रेपोजिशन है। ओह इंटरजेक्शन है। न्यू एडजेक्टिव। तो बेटा नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको इस बुक में ही आपने बहुत अच्छे से पढ़ के से याद कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडरलाइन ऑल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डेंजरस एनिमल्स रोम्ड अबाउट इन द थिक फॉरेस्ट। डेंजरस क्या है? एडजेक्टिव है। थिक भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में येलो और रेड एडजेक्टिव है। थर्ड सेंटेंस में ग्रे हेयर्ड एंड डिलाइटफुल, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। डी सेंटेंस में बिग और स्मॉल एडजेक्टिव है। अम्यूजिंग एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में फॉर और एवरी, ये दोनों ही एडजेक्टिव है। और लास्ट सेंटेंस में पुअर और ब्लाइंड, द पुअर मैन वॉज ब्लाइंड। पुअर और ब्लाइंड ये दोनों एडजेक्टिव है। इसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में हमें स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन का बताया गया है। आपने बुक में से ही इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिक आउट स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन। हमने इन सेंटेंस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है, उसके सामने स्टेटमेंट लिखना है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखना है। इसी तरह कमांड और एक्सक्लेमेशन भी लिखना है। बोट आर टर्न अप, क्या है? ये स्टेटमेंट है। सेकंड सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ डिड, इससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन है। डिड यू हेयर व्हाट आई सेड, ये क्वेश्चन है। कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, कमांड है। हाउ फ्रेश इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चला है कि ये एक्सक्लेमेशन है। इसके सामने लिखे एक्सक्लेमेशन। इट विल चेंज कलर इन 2 hours, स्टेटमेंट है ये। थ्रो इट अवे, कमांड है ये। आई बर्न्ड इट येस्टरडे, जी वाला सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है। और लास्ट सेंटेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है। मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूंगी। इट हैड टक्स इन इट, डिड इट हैव टक्स इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वॉज प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। क्वेश्चन बना है इसका, वर देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ही सेट डाउन ऑन द ग्रास, क्वेश्चन लिखे इसका, डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास। She finds it hard. Does she find it hard? Last sentence, I am still working hard. Are you still working hard? बेटा नेक्स्ट पेज पे है listening and speaking. Say these words aloud. बेटा इन वर्ड को आपने loudly पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट दीज एज नंबर, एग्जाम्पल भी दी गई है 1984, इसको आपने नंबर में लिखना है जैसे यहाँ लिखा जा चुका है। इसी तरह इनको भी लिखना है। 10,000 को कैसे लिखेंगे, 20th को कैसे लिखेंगे, 1751, 1751, 1750, 10,000, 20th, 1751, 1751 को ऐसे लिखेंगे और 1751, 1751 और 1750। बेटा ये इस यूनिट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर मेरी ये वीडियो आपके काम आ रही है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, अगर किसी किस्म का आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर दे एनी मोर प्लेसेस लेफ्ट फॉर ह्यूमन टू एक्सप्लोर? थिंक अबाउट द क्वेश्चंस फॉर a few minutes and write down a few points you feel are important. Tell other in your class what you think and listen to what they have to say. इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूंगी। तो लिखें, there are still several places left for humans to explore, both on Earth and beyond. Deep ocean, remote and inaccessible landscapes on Earth, outer space, underground areas, and the inner working for the human mind. Technological advancement and scientific research continue to open up new avenues for exploration एंड डिस्कवरी। इसको आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, या कोई भी 2 पॉइंट उठा के आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर सकते हैं। कंपोजिशन, व्हाट वुड इट बी लाइक टू लिव इन अमंडसन स्कॉट आइस स्टेशन फॉर अ ईयर? डिस्कस दिस विद अ क्लासमेट एंड मेक सम नोट्स। Think about the darkness, staying indoor, what you would miss about the seasons where you live now, and more. Write about what it would be like to live there for a year. इसके नोट बना चुकी हूँ। एक्सप्लोरर का लास्ट क्वेश्चन है, ये कंपोजिशन का क्वेश्चन है। लॉस ऑफ नेचुरल लाइट डिस्टर्बिंग sleep pattern, need for self-care, compact potential impact of the environment, difficulty distinguishing between day and night without access to outdoor activities or social events, it would be difficult to stay active. नेक्स्ट वीडियो में द पोएम की एक्सरसाइज में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।